Hi guys, I'm Hitesh and welcome to another exciting video. So today we'll learn about what are the scopes in Kotlin coroutines. And this video is with the continuation on my previous ones where we have explored coroutines, dispatchers and suspending functions. You can also find the playlist in the description below. So by the end of this video, you will have a solid understanding of what are scopes and how to use them in Kotlin. And one more quick update. So this is one of the frequently asked interview questions in Android. The interviewer might ask you, what are the different categories or types of scopes, and they might ask you to write down the code as well. So let's get started without any delay. So scopes in Kotlin coroutines. In Kotlin, scopes are essential for managing the lifecycle of coroutines. They define the context in which coroutines will run, handle exceptions, and manage how coroutines will be cancelled or completed. You can say like a scope ensure that coroutines are bound to a lifecycle, which is important in Android applications to prevent memory leaks or unexpected behavior when coroutines outlive the component they are tied to. Maybe it could be activity, fragment or a view model. So in a layman language, I would say कि scope वो चीज़ है whenever you're going to start a coroutine, right? तो आपको एक स्कोप डिफाइन करना पड़ेगा कि ये वाला कोरूटीन इस स्कोप में रन होगा. अगर इस स्कोप को हम वैनिश कर देंगे और ये स्कोप ख़त्म हो जाएगा तो जो कोरूटीन है, जो रेलेवेंट या रिस्पेक्टिव कोरूटीन है, दैट शुड ऑल्सो गेट कैंसल्ड ऑटोमेटिकली. एंड यूजुअली जो भी कोरूटीन आप लॉन्च कर रहे हो वो एसोसिएटेड होगा डायरेक्टली विद द स्कोप. स्कोप में भी एक लाइफ साइकिल स्कोप हो सकता है किसी एक्टिविटी का, किसी फ्रेगमेंट का और किसी व्यू मॉडल का. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्कोप स्टार्ट कर रहे हो, एक कोरूटीन स्टार्ट कर रहे हो व्यू मॉडल में, तो उसका स्कोप होना चाहिए व्यू मॉडल स्कोप दिस वन. और अगर आप एक कोरूटीन स्टार्ट कर रहे हो जिसमें आपको चाहिए कि वो कोरूटीन हमेशा अलाइव रहे टिल द एप्लीकेशन इंस्टेंस इज अलाइव, सो इन दैट केस ग्लोबल स्कोप हैज़ टू बी यूज्ड. In case you are starting a coroutine जिसमें that which is associated with any kind of activity or a fragment, in that case we should be using the lifecycle scope. So guys, let's understand what are the different categories of scope and how do they work. Let's talk about the global scope. So the description says this is a global coroutine scope that launches coroutines that live for the entire duration of the application. Usage: avoid using this in Android as it can lead to memory leaks since it does not have a life cycle boundary. So जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आप ग्लोबल स्कोप यूज़ करते हो किसी भी कोरूटीन को लॉन्च करने के लिए, दैट मीन्स आप उस कोरूटीन को ये बता रहे हो कि भाई जब तक एप्लीकेशन का इंस्टेंस लाइव रहेगा ना, तब तक आपको ये वाला कोरूटीन लाइव रखना है. बट इसमें एक इशू ये है कि मेमोरी लीक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. फॉर एग्जांपल, आपने एक एक्टिविटी लॉन्च करी और उस एक्टिविटी में आपने ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च करके आपने एक कोरूटीन स्टार्ट कर दिया, आपने कोई प्रोग्राम या फिर आपने कुछ एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया उस ब्लॉक के अंदर, राइट? नाउ बाय द टाइम इट इज़ रनिंग, द ब्लॉक इज़ रनिंग, आपकी वो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है फॉर एनी ऑफ द रीजंस. मे बी आप you press the back button or you minimize the application, so of course उसका इंस्टेंस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. बट क्योंकि आपने वो कोरूटीन ग्लोबल स्कोप में स्टार्ट किया था, तो ग्लोबल स्कोप का इंस्टेंस ये कहता है कि आपने एप्लीकेशन का इंस्टेंस तो डिस्ट्रॉय नहीं किया ना, आपने सिर्फ एक्टिविटी का इंस्टेंस डिस्ट्रॉय किया, राइट? सो इन दैट केस एक्टिविटी जो गार्बेज कलेक्टर होगा, it will try to destroy the instance of an activity, but जब उसको पता चलेगा कि इस इंस्टेंस को डिस्ट्रॉय करते टाइम एक ऑलरेडी कोरूटीन एक ऐसा रन हो रहा है जिसका इंस्टेंस अभी भी लाइव है, तो वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा. एंड दैट वुड बी द केस वेयर इट विल लीड टू मेमोरी लीक. इट विल नॉट बी एबल टू क्लियर द इंस्टेंस ऑफ अ particular scope or of a coroutine because it belongs to a global scope. It belongs to the instance of the application, right? For example, आप इसको कैसे लिखोगे? Global scope dot launch and you are trying to print something after a delay. So the important thing is coroutines launched with global scope are not tied to any specific life cycle and will run until they complete. That's what I was trying to explain you guys कि अगर इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे आप
उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय भी कर देते हो तो भी ये पर्टिकुलर ब्लॉक डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड इसकी वजह से यू विल एंड अप विथ मेमोरी लीक्स एक्सेप्शंस। दैट इज़ वाई यू शुड ऑलवेज बी माइंडफुल दैट हम ये ग्लोबल स्कोप कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर कैटेगरी ऑफ स्कोप विच इज़ कोरूटीन स्कोप. So the description says you can define your own scope using a coroutine scope. This is typically used to create a scope with a specific context like Android's view model or activity. So मैं एक simple सा example लूँगा guys to make you understand कि coroutine scope कहाँ पे helpful होगा. For example, आपके पास view model है and then you're trying to make parallel API calls. Like एक API call तो user को fetch करेगी और एक API call maybe it will try to fetch some other details relevant to users. So there are two API calls that will run parallelly. Now assume करो कि कोई भी एक API call अगर fail हो जाती है and it is not able to get you the data, it fails during the execution itself. So in general the entire process will fail and it will lead to the crash of the application. लेकिन आप अगर कोरूटीन स्कोप डिफाइन करते हो और उसके अंदर वो पैरेलल कॉल्स को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करोगे, इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि अगर कोई भी एक एपीआई कॉल फॉर एनी रीजन फेल होती है तो इट विल एंड अप इन द एक्सेप्शन, इट विल रन और इट विल गो इन द कैच ब्लॉक. इस केस में एक्सेप्शन ही आएगा, लेकिन इस केस में एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी. सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस दैट वेयर यू शुड यूज़ द कोरूटीन स्कोप. एंड यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जब भी आप पैरेलल कॉल्स कर रहे हो, यू ट्राइंग टू मेक एपीआई कॉल्स 2 or 3 कॉल्स और आपको लग रहा है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एनी ऑफ द कॉल माइट फेल, तो आप उन सारी कॉल्स को एक साथ कोरूटीन स्कोप में डिफाइन करो और उसको ट्राई कैच में लॉक करो. So the important thing is coroutine scopes are best used when we have to make parallel calls in the same function. And in general अगर आपको coroutine scope define करना है, so you can use in this way. Like I have created a variable my scope and I'm defining the coroutine scope. So उसके अंदर मैंने dispatches भी पास किया है. आई होप आपने मेरे क्लास वीडियो ऑलरेडी व्यू किया होगा जिसमें मैंने डिस्पैचेस के बारे में आप सबको बताया है कि कौन सी कैटेगरी और कौन से टाइप्स के डिस्पैचेस होते हैं और डिस्पैचेस का क्या यूज़ है, कहाँ हमें यूज़ करना चाहिए या वो क्या करता है. सो इन दिस केस डिस्पैचेस डॉट मेन इज टेलिंग यू कि आई एम ट्राइंग टू एक्सिक्यूट समथिंग ऑन द मेन थ्रेड बिकॉज ये डॉट मेन है. एंड देन व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज माई स्कोप डॉट लॉन्च और उसके अंदर मैं एक डिले लगा रखा फॉर मे बी फॉर सम सेकेंड्स एंड देन आई एम ट्राइंग टू प्रिंट द custom coroutine scope. So this is a simple example and this is the use case where you can make use of the coroutine scope. Now let's talk about the view model scope. So the view model scope description says a special scope tied to the view model lifecycle in Android. Coroutines in this scope are automatically cancelled when a view model is cleared. Usage best used in a view model. So guys, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप ग्लोबल स्कोप यूज़ करते हो और ग्लोबल स्कोप में क्योंकि वो किसी भी एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल से किसी भी एक्टिविटी या किसी भी साइकिल से अटैच नहीं होता है, बट इन केस ऑफ व्यू मॉडल स्कोप इट इज़ डायरेक्टली अटैच विद द लाइफ साइकिल ऑफ अ व्यू मॉडल. कहने का मतलब ये है कि अगर व्यू मॉडल का इंस्टेंस डिस्ट्रॉय होता है या उसकी जो लाइफ साइकिल है वो ख़त्म होती है, तो जो भी उस व्यू मॉडल के अंदर स्कोप रन हो रहा होगा और जो भी कोरूटीन उसके अंदर एग्जीक्यूट हो रहा होगा, इट विल बी कैंसल्ड और इट विल बी क्लियर्ड ऑटोमेटिकली. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये क्लास है मेन व्यू मॉडल विच इज़ एक्सटेंडिंग द व्यू मॉडल क्लास एंड देर इज़ अ फंक्शन कॉल्ड फेच. सो फेच क्या कर रहा है, इट इज़ मेकिंग यूज़ ऑफ व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च. हम लॉन्च कर रहे हैं कोरूटीन को. दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट सम फंक्शन लाइक फेच यूज़र. फेच यूज़र इज़ नथिंग बट आप एक API कॉल कर रहे हो बैकएंड पे जो कि फेच करेगा यूज़र डेटा. सो द फंक्शन इज़ फेच यूज़र एंड इट इज़ अ सस्पेंडिंग फंक्शन. सस्पेंडिंग फंक्शन आप मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने मेरा ये वाला ट्यूटोरियल भी देखा होगा जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि सस्पेंडिंग फंक्शंस क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं एंड इसका यूज़ क्या है. सो मैं आपको फिर से एक बार ब्रीफ कर दूँ. सस्पेंडिंग फंक्शन आर दोज फंक्शंस विच आर यूज्ड टू मेक एनीथिंग हैपन इन द बैकग्राउंड and it allows to execute other
operations parallelly. It will not block that particular thread. माने कि कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फेच यूज़र्स है, राइट? सो अगर अज्यूमिंग कि फेच यूज़र के बाद में एक और मैं कोई ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने का ट्राई कर रहा होता है यहाँ पे, सो सस्पेंडिंग फंक्शन क्या करेगा, ये तो बैकग्राउंड में चला जाएगा और इट विल ट्राई टू एग्जीक्यूट इट्स ओन फंक्शनैलिटी, और उसके अलावा जो भी लाइन ऑफ कोड यहाँ पे लिखा होगा इसको वो एग्जीक्यूट करने देगा. इट विल नॉट ब्लॉक द अदर स्कोप एरिया, इट विल नॉट ब्लॉक द अदर लाइन्स टू गेट एग्जीक्यूट. दैट इज़ वॉट इट इज़ मेंट फॉर. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सस्पेंड फंक्शन जो है ना, इट कैन बी कॉल्ड थ्रू अनदर सस्पेंड फंक्शन और इट कैन बी कॉल्ड थ्रू अ कोरूटीन. हमारे इस केस में हम सस्पेंड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं कोरूटीन से. सो कमिंग बैक टू टॉपिक गाइस, व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च हमने किया, हमने कोरूटीन को स्टार्ट किया एंड वी आर ट्राइंग टू फेच अ यूज़र. नाउ इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने हम बैकग्राउंड थ्रेड में हम चले गए क्योंकि हमने डिस्पैचेस यूज़ किया है. .io मतलब कि हम कोई नेटवर्क कॉल ट्राई कर रहे हैं टू मेक, एंड दैट इज़ द रीज़न वी हैव डिसाइडेड टू मेक यूज़ ऑफ द dispatches.io. यहाँ पे मैंने विद कॉन्टेक्स्ट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि एक ऐसा कीवर्ड है जो कि आपको किसी भी पर्टिकुलर थ्रेड से शिफ्ट करने के लिए काम में आता है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये पूरा फंक्शन मेन थ्रेड पे एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो विद कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से आप एक डिस्पैचर डिसाइड कर सकते हो कि भाई मुझे मेन थ्रेड से अब आईओ वाले थ्रेड पे, इनपुट आउटपुट थ्रेड पे जाना है. दैट इज व्हाट द विद कॉन्टेक्स्ट कीवर्ड इज यूज्ड फॉर. नाउ सो दिस इज द use case where you should be using view model scope easily. Now coming to the third category of scope, which is life cycle scope. So उसका description कहता है a scope tied to the life cycle of an activity or a fragment. Coroutines launched in this scope are automatically cancelled when the activity or fragments is destroyed. Best use case is it should be used for any kind of view, maybe it could be activity or a fragment. So guys, life cycle scope आप सबसे अच्छी जगह है उसको यूज़ करने का. आप किसी भी फ्रेगमेंट और किसी भी एक्टिविटी में यूज़ कर लो, ठीक है. और जो इस स्कोप के अंदर जो भी कोरूटीन होगा, जो भी फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट हो रही होगी, उसका जो स्कोप होगा वो बेसिकली ये होगा कि जब तक उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का स्कोप अलाइव है, इंस्टेंस अलाइव है, तब तक वो स्कोप काम करेगा. अगर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक ये वाली एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो ये जो स्कोप है ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ये वेट नहीं करेगा कि भाई पहले तो मैं पूरा कंप्लीट होऊंगा उसके बाद ही मैं अपने इंस्टेंस रिलीज़ करूंगा और डिस्ट्रॉय होऊंगा. नहीं, ऐसा नहीं होगा. ये वाला स्कोप डायरेक्टली टाइड होगा किसकी लाइफ साइकिल से, एक्टिविटी या फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल से जहां आप यूज़ कर रहे हो. सो हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ इट, लाइफ साइकिल स्कोप डॉट लॉन्च एंड देन यू परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन द मेन थ्रेड. सो जस्ट टू ब्रीफ यू अगेन गाइस, हमने 3 तरह के स्कोप्स पढ़े हैं आज, 4 तरह के. ग्लोबल स्कोप, कोरूटीन स्कोप, व्यू मॉडल स्कोप और लाइफ साइकिल स्कोप. ग्लोबल स्कोप पूरी एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल से अटैच्ड होता है, जब तक उसका इंस्टेंस लाइव रहेगा तब तक वो स्कोप काम करेगा. कोरूटीन स्कोप के लिए मैंने आपको बता दिया है कहाँ ये यूज़फुल है. व्यू मॉडल स्कोप बेस्ट यूज्ड ओनली इन व्यू मॉडल, उसकी लाइफ साइकिल से भी अटैच्ड रहेगा. लाइफ साइकिल स्कोप इज़ यूज्ड बेस्ट इन केस ऑफ अ व्यू, maybe it can be fragment or an activity. So जो नेक्स्ट टॉपिक्स होने वाले हैं मेरे नेक्स्ट वीडियोस में, उसमें लास्ट जो हमारा बच रहा है वो ये है हाउ टू स्टार्ट अ कोरूटीन. वी कैन यूज रन ब्लॉकिंग, लॉन्च एंड असिंक. एनीथिंग वी कैन यूज, एनी कीवर्ड वी कैन यूज टू लॉन्च द कोरूटीन. सो गाइस, दिस इज़ द कंक्लूजन. नाउ आई एम होपिंग कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि स्कोप्स जो हैं कोरूटीन में क्या काम करते हैं, क्यों ये डिफ़ाइन होते हैं, एंड इन्हें कहाँ पे या किस तरह के स्कोप को हमें किस जगह पे यूज़ करना चाहिए. एंड दिस इज़ प्रीटी मच फॉर टुडे गाइस. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. बाय बाय.